Okay, as I was saying, we have done Planck's quantum theory, which deals with the dual nature of light, and with the help of Planck's quantum theory, we have explained certain incidents like black body radiation, photoelectric effect. In fact, last class we have seen how Planck's quantum theory can explain photoelectric effect, right? Yes. And what is the last model we have learned? Atomic model, Rutherford's atomic model, and we have learned the Yes. drawback. And the next model we are going to learn is Bohr's atomic model, and Bohr's atomic model को सीखने के लिए you needed to know Planck's quantum theory and whatever we have learned in between. So let us start with Bohr's atomic model. Okay. So can you tell me Rutherford's atomic model का एक major drawback क्या था? That he did not specify any circular orbits. As per Rutherford, electrons are allowed to revolve around the nucleus in any random circular path, right? मतलब उसके हिसाब Yes. से तो ये जो ऑर्बिट्स का रेडियस 0 to infinity कुछ भी हो सकता है as per Rutherford. Hmm. And that is the first thing Bohr corrected. He said that electrons revolve around nucleus in fixed circular paths called Bohr orbits. So he specified those circular paths, right, where electrons are allowed to revolve around the nucleus. Okay, do you get me or not? Yes, sir. So he said that there are some specific circular paths जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड पे रिवॉल्व कर सकता है, and those are called Bohr's orbit. And when they revolve in those circular paths, they do not radiate any energy. Radiate मतलब उसका energy change नहीं होता है. The energy remains fixed. Okay. Yes. Now the question is, which circular paths? Which circular Hmm. paths will allow the electrons to revolve around the nucleus? कुछ तो condition होगा. And the condition he gave is, so let's say you can see in the right side, I have drawn some circular path around the nucleus. So let's say these are the allowed Bohr orbits. So this is the first orbit, this is the second orbit, this is the third orbit, as defined as n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड पे रिवॉल्व कर रहे हैं. So let's say this is an electron, and at any moment you can see this is the direction of linear velocity of the electron. Linear velocity, the direction is the tangent what you draw, that is the direction. The mass of electron is m, and let's say the radius of the orbit is r. Nucleus से ये electron का distance क्या है? This is r. Okay. Yes. Now he said जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अब देखो इन ए सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोमेंटम होता है, एक लीनियर मोमेंटम जो नॉर्मली एम भी होता है, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम. क्योंकि लेट्स से व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट पोजीशन, तो ये इन दोनों के बीच ये एंगल चेंज होता है इनिशियल एंड, तो इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम भी एक ऐड होता है, एंड द एंगुलर मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड एज एम वी आर, राइट. इलेक्ट्रॉन का Yes. मास, उसका लीनियर वेलोसिटी, एंड जो रेडियस होता है ऑर्बिट का, इन तीनों का जो प्रोडक्ट, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट. तो बोर्ड्स व्हाट डिड ही से? ही सेड कि the circular path in which the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. H is the Planck's constant, so you can understand that he used Planck's quantum theory here. Yes. Integral, so n is the multiplier which must be positive integer. N का value क्या हो सकता है? 1 to infinity, it can be anything, but it will only take the positive integer values, right? Not any fractional values or not any negative values. Okay. Yes. तो इसका And मतलब for क्या the होगा? tangent, is Right. which direction do we draw tangent? The tangent shows the direction of linear velocity of electronic revolution at any particular moment. जैसे कि इस moment पे this is the tangent, so this will be the direction of linear velocity. But how do we determine if do we do it in clockwise or anti-clockwise direction? No, अगर इस direction पे rotate कर रहा है, so I am rotating in this direction, तो उस हिसाब से होगा. Okay. I hope it is clear. Yes, sir. तो जिस ऑर्बिट पे और जिस सर्कुलर पाथ पे एंगुलर मोमेंटम mvr is integral multiple of h by 2 pi, n is the multiplier.
सो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये इक्वेशन जिस ऑर्बिट पे सेटिस्फाई होगा दे विल बी कॉल्ड बोर्स ऑर्बिट. इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर एन 1 होगा इट विल बी फर्स्ट बोर ऑर्बिट. यहाँ पे देखो एन इज इक्वल टू 1, ये सेकंड बोर ऑर्बिट है, थर्ड बोर ऑर्बिट है, राइट? तो कैन आई से इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड, इट हैज सम स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज. क्या हो सकता है द इलेक्ट्रॉन का angular momentum? Either it can be h by 2 pi or 2h by 2 pi or 3h by 2 pi, like that. Yes. So it has a discontinuous set of values, so I can say angular momentum of electron is quantized, right? So this equation is called quantization of angular momentum. I hope this is clear, Yes. right? Now I hope you already know this कि हर एक जो ऑर्बिट नंबर होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसका एक डेजिग्नेशन और नेम भी होता है. जैसे कि n इजिकल टू Yes. 1 मतलब k शेल होगा, n इजिकल टू 2 मतलब l शेल होगा, n इजिकल टू 3 मतलब m शेल होगा. तुम नंबर जब नंबर से बोलते हो देन यू से ऑर्बिट, जब तुम k l m अल्फाबेट से बोलते हो यू कॉल देम शेल, राइट? Okay. थर्ड क्या है? एज आई टोल्ड बिफोर कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है इन एनी बोर्ड्स ऑर्बिट, तो इट डज नॉट रेडिएट इस एनर्जी. रेडिएट मतलब इट नाइदर लूजेस एनी एनर्जी नाइदर इट गेन्स एनी एनर्जी. मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड सेम एज द एनर्जी ऑफ द बोर ऑर्बिट इन व्हिच इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जिस ऑर्बिट पे है उस ऑर्बिट का ही एनर्जी पकड़ लेता है, राइट? Okay. तो कैन यू टेल मी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसका स्टेबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? Uh, if it is देखो going away, then it will decrease. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच जितना अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ Hmm. अट्रैक्शन इज स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट, राइट? तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज. The further it goes away, the force of attraction will decrease. तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाएगा. एंड Yes, इफ sir. द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस द एनर्जी शुड इंक्रीज. If stability decreases, then एनर्जी शुड इंक्रीज. yes. तो कैन आई से कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Yes, sir. तो उसके हिसाब से के शेल पे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा दैट शुड बी लेसर देन इट्स एनर्जी इन एल शेल, एंड दैट Hmm. इज हाउ इट विल गो ऑन. So stability is inversely proportional to distance from Yeah, nucleus. I think you know this. Stability is Yes, sir. inversely proportional to energy. I hope so far things are clear. Yes, sir. Okay. Now let us understand the next part of the Bohr's postulate. So can you tell me when will electron change its energy? किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे तो वो एनर्जी चेंज नहीं करता, राइट? Hmm. बट व्हेन इट इज सपोज टू चेंज इट्स एनर्जी? When there are no more when there is no more space for electrons to be filled in that shell. नो, द पॉइंट इज व्हेन इट विल चेंज द ऑर्बिट इट विल चेंज इट्स एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्बिट चेंज करेगा देन इट विल चेंज, इसका एनर्जी भी चेंज होगा, इजंट इट? Okay. So when the energy will change when electron jumps from one orbit to another. When electron Okay. jumps from one orbit to another, तो इसका एनर्जी चेंज होगा. एंड जब when an electron jumps from one orbit to another, this is called electronic transition. This is called electronic transition. So electron changes its energy during electronic transition. Now let us understand what is electronic transition. Let's say this is the energy level of electrons. So you can consider each Bohr orbit as an energy level of electron, right? क्योंकि हर एक ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है. Hmm. So can I consider each Bohr's orbit as an energy level of electron? तो let's say ये lower orbit है. देखो there are two types of electronic transition possible. एक तो इलेक्ट्रॉन lower to higher orbit transit कर सकता है और higher to lower orbit transit कर सकता है, right? Yes. So let's say this is lower orbit. तो lower orbit मतलब
ऑर्बिट बोर्स ऑर्बिट नंबर भी कम होगा एंड दिस इज द हायर ऑर्बिट n2, दिस इज द लोअर ऑर्बिट n1. सो कैन आई से n2 इज ग्रेटर देन n1? Yes. Energy, right? ऑर्बिट नंबर भी तो एनर्जी के साथ ही चेंज होता है ना, जैसे Hmm. सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा है एज इट इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस. Yes, sir. तो आई हैव सेड दैट n2 ग्रेटर देन n1. तो ये दिस इज द हायर ऑर्बिट एंड n1 इज द लोअर ऑर्बिट एंड हायर ऑर्बिट का एनर्जी लेट्स से e2, लोअर ऑर्बिट का एनर्जी इज e1. सो अगेन e2 इज ग्रेटर देन e1. Yes, sir. तो लेट्स से देयर इज अ फोटोन एट लोअर ऑर्बिट n1 पे है एंड अगर इसको n2 पे जंप करना है तो इट हैज टू ओवरकम दिस एनर्जी डिफरेंस. Yes. सो हाउ विल इट गेट इट? खुद से तो नहीं मिलेगा, मतलब देयर Hmm. शुड बी सम सप्लाई ऑफ एनर्जी, राइट? Yes, sir. So what can happen when some radiation falls on it? क्या होगा? कोई कोई फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा. Hmm. So it can collect the energy from the photon and overcome this energy barrier and jump to the higher orbit. Yes, sir. So when I say lower to higher orbit electronic transition के लिए photon absorption होता है. It will absorb the photon. Photon का जो energy है that Yes. will be absorbed, right? So ये photon का energy is nothing but the energy required for this transition, right? Similarly, Sir, when an electron, yeah, are you asking something? I just want to know why would an electron jump from one energy state to another energy state? अगर इसको तुम एक्साइट करोगे तो करेगा ना, खुद How से do नहीं we करेगा. excite लेट्स it? से कोई यू आर, इसको तुम एक्साइट कर रहे हो कोई रेडिएशन से और तुम somehow you are energizing things, ठीक है. Okay. लेट्स से you are sitting in your room, there is very hot outside, you are sitting in your room in AC. तो तुम खुद से तो बाहर नहीं जाओगे इतना धूप में, in this Hmm. scorching, under the scorching sun, right? But if there is some reason which is driving you to go out, तो जाना पड़ेगा. Okay. Right? So if Got this it. electron is excited by some radiation or energy, तो it will jump to some higher orbit. Yes, sir. But उसके लिए a photon must strike the electron and supply that energy difference, जिसको Yes, उसे sir. overcome करना है. Understood. Similarly, when an electron jumps from higher to lower orbit, तो उसके लिए it has to lose energy. Energy कम करना पड़ेगा, right? Hmm. So photons are emitted. So photon will be emitted. So simple logic. Okay. ड्यूरिंग लोअर टू हायर ऑर्बिट ट्रांजिशन फोटोन एब्जॉर्ब होता है, ड्यूरिंग हायर टू लोअर ऑर्बिट ट्रांजिशन फोटोन रिलीज होता है, Okay. राइट? एंड Yes, sir. this is called transition energy. What is transition energy? That is the amount of energy associated with the electronic transition. Is it clear? Yes, sir. तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कितना एनर्जी एसोसिएटेड है? दैट इज नथिंग बट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू एनर्जी लेवल्स. बोल सकता हूँ. Yes, sir. तो ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा? दैट इज डेल्टा ई. मैं मॉड पे लिया हूँ, आई एम टेकिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस. तुम लोअर टू हायर करो, हायर टू लोअर करो, आई विल ओनली टेक द अमाउंट एक्सक्लूडिंग द प्लस माइनस, मतलब माइनस एक्सक्लूड करूंगा. तो सो बेसिकली आई विल टेक हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस एंड दैट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द फोटोन. तो ट्रांजिशन एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू एनर्जी लेवल्स जो इस ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है, and which is nothing but the energy of the photon involved in that this transition. Is it clear? Yes, sir. So तो does E2 तुम्हें, minus E1 have to be in modulus? हाँ, तुम E1 माइनस E2 करो और E2 माइनस E1 करो, मॉड पे लोगे तो अमाउंट ही मिलेगा ना, जस्ट वैल्यू, Hmm. राइट? एंड ऑल्सो अगर तुम्हें ट्रांजिशन एनर्जी मिल गया तो इस ट्रांजिशन में जो फोटोन एब्जॉर्ब और एमिट हो रहा है तो उसका वेवलेंथ भी मिलेगा बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट hc by lambda और h nu. तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी तुम्हें यहाँ से मिल रहा है. so this is your working formula, this is your thought, मतलब कैसे अप्रोच करना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो दैट इज ऑल गिवन इन दिस इक्वेशन, राइट? जो लॉजिक है. आई होप इट इज क्लियर Yes, टू. sir. Yes. तो अभी तक क्या postulates मिला? What are the postulates we have learned so far? अच्छा, we'll come to that. तो एक चीज बताओ, can you tell me what is the ground state of electron? Normally ground state का मतलब क्या होता है? जो minimum energy state होता है, right? Yes. तो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी स्टेट कौन होगा? Where electron is in the closest distance with respect to the nucleus. First energy shell. तो n is equal to 1. Fast orbit is the ground state of electron. Can I say that? Yes, sir.
So what will be the excited state then? अगर The ground one state that of is electron n is greater. equal to 1 होता है, as we know that all the Bohr's orbit are energy levels or state of electrons, and ground state is nothing but fast orbit. So can you tell me कि excited state of electron मतलब क्या? Larger than the ground state. No. So ground excited state मतलब एनर्जी अगर ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट. Okay. कोई भी एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होगा, दैट शुड बी द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो दैट मीन्स द n शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? Yes, sir. इफ आई से फास्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू क्या होगा? 2. राइट. जो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, दैट विल बी द फास्ट एक्साइटेड स्टेट. इफ आई से व्हाट शुड Yes. बी द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4. 4. तो सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 8. So if I say nth excited state of electron, तो क्या होगा उसका वैल्यू? N 1 plus plus n. 1. Hmm. आया समझ में? तो यू हैव टू Yes, अंडरस्टैंड sir. दिस टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चंस इस टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. इफ यू डोंट नो दिस, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. Okay. ओके Yes. ओके. सो द लास्ट जो पार्ट है, पोस्टुलेट्स तो बोर्ड दे दिया, बट he has to also explain the stability of atom, right? So let us Yes. understand how he explained the stability of the atom. So basically he took the same concept as Rutherford. So Bohr also said that during an electronic revolution in Bohr's orbit, at any particular moment, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर there are two forces operating. एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ अवे फ्रॉम न्यूक्लियस काम कर रहे हैं. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये ग्रीन एरो दिख रहा है. Yes, sir. और अंदर की तरफ क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस की तरफ काम कर रहा है. एंड बाहर की तरफ क्या काम कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड बोर सेड कि दिस एट एनी मोमेंट ऑफ रिवोल्यूशन दिस टू फोर्सेस आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर. इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट आउटसाइड और ये न्यूक्लियस के ऊपर भी नहीं गिरेगा. राइट? Okay. तो लेट्स से द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटॉम इज Z. तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे देयर इज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ईच प्रोटॉन कैरीज 1 यूनिट चार्ज. Yes. तो न्यूक्लियस का चार्ज Q1 क्या होगा? प्लस ZE. Z यूनिट चार्ज के लिए ZE. एंड ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? Q2 इज माइनस E. इज इट क्लियर? Yes, sir. And I think by now you know how to find Coulombic force or electrostatic force. क्या होता है? That is K into Q1 Q2 by R square. ये वाला फॉर्मूला होता है. Yes, sir. अब K का वैल्यू CGS में 1 होता है, तो that is more convenient to do the calculations with the CGS system. So I'll take K value 1. So Q1 is ZE, Q2 is equal to minus E. But since there is a mod, it will be ZE square by R square, right? That is the Okay. electrostatic force of attraction. That will be ZE square by R square. And the centrifugal force is mv square by r. That is the centrifugal force. M is the mass of electron, v is the linear velocity, r is the radius of Bohr's orbit. Okay. अब ये कैसे आया? How the expression of centrifugal force came, that I am not going into that, क्योंकि physics में circular motion का अलग chapter ही चलेगा. We will get to know all things in depth. ठीक है? Okay. But for now, we have to learn this force balancing equation, right? SI unit पे ये मिलेगा. You have to K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught you have to put, but I am not going into that. That makes things complicated every time. So should I do it in CGS? CGS पे करेंगे, right? But it is Okay. good to know the SI K का वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught. SI पे उसका वैल्यू क्या होता है पता होना जरूरी है. बट जो कैलकुलेशन CGS में करेंगे, सो दैट वी डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम 1 by 4 pi epsilon naught. इसका वैल्यू 1 पकड़ के कर लेंगे CGS पे. Okay. Okay. So far, what are the postulates we have got? First point, Bohr specified the circular path, right? Under some condition. Condition क्या है? MBR is equal to NH by 2 pi, which is called quantization of angular momentum, right? There is a first Yes. equation in Bohr's postulate कि जिस ऑर्बिट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. सेकंड,
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स्ड होता है while it is revolving around the nucleus in a particular Bohr orbit, and इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस ऑर्बिट का ही एनर्जी होगा. थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन will change its energy during electronic transition, and I have already told by the diagram कि during lower to higher orbit transition photon absorb होता है, during higher to lower orbit transition photon release होता है, and the transition energy is equal to the energy difference of those two energy levels, and that is nothing but the energy of the photon associated with the transition. just जिससे तुम wavelength and frequency भी निकाल सकते हो, right? And Yes, sir. fourth, this force balancing equation which explains the stability of all the electrons and nucleus. ठीक है? Is Yes, there sir. any doubt? No, sir. चलो सही है. So let us start the mathematical operation of Bohr's model of atom. Mathematical treatment. Bohr's model of atom से mathematical treatment जो होता है, which is important. ठीक है, ये ऐसा बहुत कुछ जानने को मिलता है. तो mathematical treatment of Bohr's model, तो how many equations you have from the Bohr's postulate? There are two equations. One is this one, which is called quantization of angular momentum, and the other is force balancing equation. We are considering k is equal to 1. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन है. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इन दोनों इक्वेशन में व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द कांस्टेंट? इक्वेशन 1 पे क्या क्या कांस्टेंट है बता सकते हो? Pi, राइट. Planck's constant, ओके. mass of electron. Mass of electron is also constant, right? So 2 pi h and m ये constant है. Velocity and radius must be the variables, right? Yes. Can you tell me दूसरे equation में which are variables? Uh, we have radius, हाँ, radius velocity दे. constant क्या है इसमें? दूसरे equation में what are the constants? constant mass of electron, Hmm. and Okay. electronics ka charge. Right. So E is also constant. These are the constants. So in these two equations, I have identified the constants. तो variables क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एंड ऑर्बिट का रेडियस. दिस टू आर वेरिएबल्स व्हिच विल चेंज विद n एंड z. z मतलब And एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है इफ यू चेंज द एटॉम. n मतलब yes, sir. ऑर्बिट नंबर, दैट कैन आल्सो चेंज. सो वी हैव फोर वेरिएबल्स हियर, राइट? नाउ आउट ऑफ Yes. दिस फोर वेरिएबल्स, n and z are known variables because they will be given in the problem. Okay. ठीक है? n and z are Yes. known variables, v and r they are unknown variables. So you have two equations, two unknown variables. Can you solve it? Can you find the Yes. expression of velocity and radius solving these two equations? That is what you do when you solve equations with x and y, right? Hmm. So we have to तो यहाँ पे substitute वही चीज करना values. है. There are two equations with two unknown variables. You have to express or solve these two unknown variables in terms of others. जो constants है, जो known variables है, उसके टर्म्स पे तुम्हें इन दोनों को एक्सप्रेस करना है. इज इट क्लियर? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? Yes, but we won't get a numerical value, right? नो, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. लेट्स से ये सारे पता है, ठीक है? Hmm. n and z विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ये सारे पता है. तो तुम्हें अननोन वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द नोन वेरिएबल्स. v एंड r मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ n and z. Hmm. ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? सो आई मतलब लेट्स से वी आर ट्राइंग टू फाइंड r. तो उसके लिए वी हैव टू एलिमिनेट वेलोसिटी. So I is equal to nh by 2 pi mv. नहीं, तो मुझे ये दोनों इक्वेशन से कैसे वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा? वेलोसिटी एलिमिनेट करोगे तो आर मिलेगा ना. Oh, okay. तो क्या करेंगे हम? पहला इक्वेशन से विल फाइंड वी स्क्वायर एंड दूसरा इक्वेशन से विल आल्सो फाइंड वी स्क्वायर. ठीक है? तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वी स्क्वायर एंड देन इक्वेट देम. डू Okay, यू so we गेट have मी? to whole square the first equation. हम फर्स्ट इक्वेशन पे, या मतलब v इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई एम आर, एंड देन यू कैन डू द वी स्क्वायर. ठीक है? एंड दूसरे इक्वेशन से भी वी स्क्वायर का एक्सप्रेस करो एंड देन दोनों को इक्वेट कर दो. दैट इज हाउ यू एलिमिनेट थिंग्स, राइट? Yes, sir. तो आई विल नॉट डिराइव द एक्सप्रेशन, मैंने प्रोसेस बता दिया. आई विल जस्ट राइट द इक्वेशन, आई विल लीव इट टू यू. तुम मुझे Okay.
डिराइव करके भेजोगे। ओके सर। चलो, दिख रहा है? यस सर। So I have solved these two equations to solve the expression of r. तो r का expression क्या मिला? You can see h square by 4 pi square m square into n square by z. So as you can see, I have expressed term r in terms of the known variables, right? And while So expressing it, what is written in the subscript n comma z? right, because r का जो value that will depend on this known variables, right? Okay. ये n and z पे डिपेंड करेगा, so that is why सबस्क्रिप्ट पे n and z लिखा हुआ है, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो सी हाउ आई हैव एक्सप्रेस्ड, मैंने कांस्टेंट जो है उसको सारे एक साथ रखा हूँ एंड द वेरिएबल्स आर केप्ट टुगेदर, है ना? n स्क्वायर z वेरिएबल है, इन दोनों को एक साथ रखा है एंड ये कांस्टेंट वाला पार्ट एक साथ रखा है, सो आई हैव सेपरेटेड द कांस्टेंट एंड नोन वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. तो तुम्हें करना क्या है, यू हैव टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन ऑफ r, ये मुझे करके भेजना है, Yes ठीक है? sir. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रोसेस हाउ टू डू दिस। नाउ व्हाट आई Hmm. विल डू इज आई विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। अगर मैं सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशंस क्या Okay. बनेगा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट। In terms of angstrom. हाँ, एंगस्ट्रॉम में मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट को मैंने एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया है। इज इट क्लियर? Okay. Yes sir. So can I say then, if this is the constant, r n z is proportional to n square by z? Yes. बोल सकता हूँ, right? Now how do you get the expression of velocity? Now you have already found the expression of r. तो यहाँ पे r का expression लिख दो, right? Hmm. तो फिर v का expression मिल जाएगा. You have already replaced r with n and z, Yes. and then you solve v. तो v का expression क्या मिलेगा? That is also I will write. You have to derive it. So derivation is your homework. So what is the velocity of electron at nth bohr orbit where the atomic number is z? It is 2 pi e square by h into z by n. I am always considering the value of k as constant 1. CGS पे कर रहे हैं, ठीक है? Sir, So can you repeat the formula? Which I'm getting confused between pi and n. Which one this is? is 2 pi e square by h, which is the constant part, और यहाँ पे z by Okay. n, which is the variable part. Okay. ठीक है? So you should write Yes. this expression at least this once, जो मैंने कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने के बाद जो मिल रहा है, राइट? द Hmm. सेकंड वन इन रेडियस, एंड यहाँ पे वेलोसिटी में अगर कांस्टेंट का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2.18 into 10 to the power 8, that is the value of the constant in centimeter per second. Is it clear? Yes sir. तो you should write this two red boxes. ये दोनों इक्वेशन you should write, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम दूंगा तो you need this. So what is written c by 137 into z राइट, by? तो बेसिकली ये जो दिस वैल्यू जो मिला मुझे 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8, ये बेसिकली लाइट का जो स्पीड होता है उसका 1/137 फ्रैक्शन होता है. Okay. सो दिस वैल्यू इज बेसिकली c by 137. c is the speed of light. Okay. आया समझ में? Yes sir. Is it So I have important written to know that part? MCQ में कुछ भी आ सकता है तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. Okay. मतलब याद मत रखो, बट यू हैव टू कैलकुलेट इफ द क्वेश्चन कम्स, राइट? Hmm. ठीक है, so let us do some problems now. So these are some
problems you have to solve now. We'll solve now. So radius वाला problem है. तो first problem is calculate radius of first, second and third pole orbit of hydrogen atom. तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. दिस इज योर वर्किंग फॉर्मूला. Yes. ठीक है. तो पहला प्रॉब्लम के लिए व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन एटम मतलब जेड का वैल्यू पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? Z will be hydrogen will be 1. 1. एंड दे हैव आस्क्ड फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट. तो एक बार n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 2 एंड देन n इज इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा, Hmm. है ना? Yes, So sir. it can be easily done. बस n and z का वैल्यू पुट Yes. करो. Hmm. Can you try the second one? So I'll show you once. मैं एक दिखा दूंगा. तो ये तो हाइड्रोजन का जो प्रॉब्लम वो हो गया. दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ये 25th वाला. सो हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, ये समझना पड़ेगा. तो रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, तो इसमें n का वैल्यू क्या है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? कैन यू टेल मी? Value of Z will be 4. 4. एंड n का वैल्यू क्या है थर्ड बोर ऑर्बिट 3. मतलब 3. तो कैन आई राइट r, n का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू इज 4, राइट? Yes. बाई क्या करना है मुझे? अब फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, तो n का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या है? The value of N will be 5 and value of Z will be 3. 3. तो ये रेशियो लेना है. नाउ यू कैन सी दैट ये जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट? रेशियो मतलब कांस्टेंट विल बी कैंसल्ड आउट. तो Yes. ये जो n है 3, इसका जो स्क्वायर वो ऊपर आएगा एंड इसका जो Yes. स्क्वायर ये नीचे जाएगा. Yes. बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, राइट? तो इसका Into मतलब 3 by ये 4. जो z है 4, ये नीचे जाएगा Yes. and this will go to the numerator. So that is how you Yes, can sir. calculate, Hmm. isn't it? Yes, sir. क्या तुम मुझे ये 27, अच्छा ये 26 कर लोगे? अगर रेडियस मिल गया तो सर्कमफेरेंस डायमीटर एरिया फॉर्मूला पता है, ऑल कमिंग फ्रॉम Yes. रेडियस ओनली, तो कर लेना. Hmm. Okay, sir. 27. What is the question? Radius of, what is the question saying? The radius of fifth bohr orbit of lithium 2 plus. तो ये रेडियस n का वैल्यू क्या लूं? 5. 5. और लिथियम 2 प्लस मतलब z का वैल्यू क्या है? 3. 3. दिस इज x, राइट? एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 3 है, हीलियम प्लस मतलब व्हाट इज z? 2. 2. So you have to express this in terms of x. तो इसको can I consider as y? इसको y मान लेते हैं and I have to express y in terms of x, right? Yes, sir. तो if I take the ratio किसको ऊपर रखूं, y को और x को? मुझे y को x के टर्म पे एक्सप्रेस करना है, तो न्यूमरेटर पे किसको रखूं? Y. y को. So can I write that y by x is equal to r3 2 by r5 3? लिख सकता हूँ? Yes. Yes, तो sir. फिर यहाँ पे व्हाट इज इट कमिंग? एन स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर ऊपर आएगा, इसका स्क्वायर नीचे जाएगा, Hmm. राइट? एंड जेड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये 2 कहाँ पे जाएगा? नीचे, और ये 3 ऊपर जाएगा. सो फ्रॉम हियर यू Hmm. कैन एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो. अच्छा तो वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम भी कर लेते. लेट अस डू सम वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम्स. दिख रहा है प्रॉब्लम्स? Yes, sir. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं साइड में. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी? कैन यू टेल मी? दैट v n 2.18. z
in 10 to the power 10. 8 into z by n centimeter per second, right? Yes, sir. That is our expression. तो पहला वाला तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 3 एंड z का वैल्यू भी 3, यहाँ पे प्लेस करो, हो जाएगा. Hmm. तो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम. ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको कर लेते हैं. कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोर्ड ऑर्बिट. तो ये वेलोसिटी n का वैल्यू क्या लिखूं, 5, N is 5 and Z z is 4. z is 4. इसके साथ रेशियो किसका निकालना है, थर्ड बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस. तो यहाँ पे n क्या है एंड z N3. क्या है, n is N3 3, Z2. z is 2. तो ये रेशियो निकालना है. दिस टाइम वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, राइट? Hmm. तो ये वाला z ऊपर जाएगा और ये वाला z नीचे आएगा, Then reciprocal of. बट रेसिप्रोकल टू n. तो ये 5 नीचे आएगा एंड ये 3 ऊपर जाएगा. समझ में आ गया कैसे Yes. कर रहा हूँ? Yes, sir. चलो अब क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ सम प्लॉट्स. आता है प्लॉट ड्रॉ करना, कैसे प्लॉट ड्रॉ होता है? Like proper, depends on this type of graph given. ठीक है, देख लेते हैं. Can you see the screen? Yes. तो लेट्स से यहाँ पे देखो ग्राफ में r वर्सेस 1/z. देखो अगर रेडियस के साथ ग्राफ, व्हेन यू आर प्लॉटिंग ग्राफ, अगर z वेरिएबल है तो फिर n को कांस्टेंट मान लो, ठीक है? रेडियस के साथ आइदर z और n, इसका कुछ ग्राफ मिलेगा तुम्हें. तो अगर z वेरिएबल है रेडियस के साथ तो n को कांस्टेंट मान लो, अगर n वेरिएबल है रेडियस के साथ तो z को कांस्टेंट मान लो. इज इट ओके? Yes. तो जब ग्राफ प्लॉट होता है तो फिर क्या होता है, जो पहले लिखा जाता है वो y एक्सिस पे प्लॉट होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो x एक्सिस पे प्लॉट होता है, राइट? Hmm. यस और नो? Yes. एक सेकेंड, चलो. हाँ, तो व्हाट इज योर मेन इक्वेशन ग्राफ प्लॉट करने के लिए? तुम्हें रेडियस के साथ z या n का ग्राफ प्लॉट करना है, तो योर वर्किंग इक्वेशन इज दिस वन. Yes. यहाँ पे r n z is equal to constant into n square by z. So this is your equation to draw the plot. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, you have to derive an expression of x and y with respect to the graph. ग्राफ के हिसाब से जो y है एंड ग्राफ के हिसाब से जो x है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा. तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्राफ. तो उसमें y क्या है? इन द फर्स्ट ग्राफ r is y Okay. एंड 1/z को हम x पकड़ेंगे, isn't it? Hmm. तो अगर मैं इस मदर इक्वेशन पे r को y से रिप्लेस करूं एंड 1/z को x से रिप्लेस करूं, n स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो कैन आई से इट इज कमिंग y is equal to mx. And y is n square constant. y is r and 1/z is equal to x. इस इक्वेशन पे 1/z is equal to x, ठीक है? And what तो बाकी पार्ट happens to k? कांस्टेंट है. सॉरी, Okay. K is also constant, right? हाँ, k and n स्क्वायर कांस्टेंट है, तो उसको Okay. so can I say this is nothing but y is equal to mx. so this is a straight line passing through origin. तो अगर मैं पहला Yes. वाला ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये पहला प्लॉट है, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट आई विल नॉट टच द ओरिजिन क्योंकि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस 0 नहीं होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे टच नहीं करूंगा, बट दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द ग्राफ. अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Yes. चलो तो दूसरा वाला देखते हैं. तो इसमें क्या है, आई हैव
to replace r with y and z with x. r को y से रिप्लेस करना है, z को x से रिप्लेस करना है. हम्म. तो अगर यहाँ पे y है एंड z यहाँ पे x है, और इफ यू ब्रिंग द z टू द अदर साइड, तो ये xy इज इक्वल टू कांस्टेंट. दैट इज योर वर्किंग फॉर्मूला. मतलब इक्वेशन प्लॉट करने के लिए xy का रिलेशन ये है, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? समझ में आया कि Can you नहीं? explain? No, sir. अरे मैंने यहाँ पे z इज इक्वल टू x प्लॉट किया हो, राइट? Okay. ये z इज इक्वल टू x लिखा हो, r इज इक्वल टू Hmm. y है, तो xy इज इक्वल टू ये कांस्टेंट हो जाएगा. ये सुन लो, Yes. है ना समझ में? तो एक Yes, sir. चीज देखो, तो ये ग्राफ को समझते, तो लेट्स से xy इज इक्वल टू 12, इसको प्लॉट करते, ठीक है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. तो तुम, आई होप तुमने ग्राफ प्लॉट किया हो, ग्राफ पेपर में, ठीक है? Yes, sir. तो क्या होता है, तो आई कैन टेक x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 1, राइट? Hmm. x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2, 4 3 Yes, 3 sir. 4. तो मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कुछ पॉइंट्स मिलेगा Yes. फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 12. नाउ इफ आई कनेक्ट देम तो ऐसे दिखेगा, ठीक है? तो Yes, sir. सिमिलरली कैन आई से थर्ड कोऑर्डिनेट पे मुझे पॉइंट्स मिलेगा, तो सेम पॉइंट्स मिलेगा बट थर्ड कोऑर्डिनेट पे. अब ये -12 -1 -6 -2 ऐसे करके होगा, Hmm. ठीक है ना? अगर मैं x एंड y का वैल्यू करता हूँ तो 12 1 6 2 4 3 3 4, जैसे ये भी हो सकता है, वैसे क्या हो सकता है, ये सेम सेट माइनस पे होगा, Yes. राइट? तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट पे भी मुझे ऐसा एक प्लॉट मिलेगा व्हिच इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट. So this Yes. kind of plot is known as rectangular hyperbola. So xy is equal to constant. ठीक है? This is the plot of, this is the equation of rectangular hyperbola. RH मतलब rectangular hyperbola. ठीक है? And वो कैसे दिखेगा? ऐसे. तो r versus z ऐसे दिखेगा. Why I am not taking the third coordinate? Because radius and atomic number negative नहीं हो सकता. तो ये third coordinate वाला part is not real in this case. ठीक Okay. है? That is why I have taken the, तो ये सेकंड ग्राफ है. देखो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो थर्ड वाला देखते, ये तुम खुद कर सकते हो आई गेस. यहाँ पे r वर्सेस n स्क्वायर है, तो r को मुझे y लेना है, n स्क्वायर को x लेना है, तो इट बिकम Hmm. सिंपली y इज इक्वल टू mx प्लॉट, राइट? Yes, sir. तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा. दिस इज योर थर्ड प्लॉट. Hmm. एंड फोर्थ प्लॉट दिस r वर्सेस n, तो यहाँ पे दिस विल बी y, और यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, राइट? N is variable. Yes. n इज x, राइट? तो n स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी का कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इक्वेशन y इज इक्वल टू kx स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, ठीक है? Okay. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो पैराबोला नॉर्मली y इज इक्वल टू kx स्क्वायर वाला प्लॉट ऐसे दिखता है. दिस इज द पैराबोला, बट अगेन आई कैन नॉट टेक द सेकंड कोऑर्डिनेट क्योंकि Okay. ये रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, Got it. ठीक है? दैट इज हाउ यू ड्रॉ द प्लॉट्स. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो क्या तुम ये वाला प्लॉट भी ड्रॉ कर लोगे अभी और बता दोगे? मैंने ये होमवर्क जैसा दिया था, बट यू कैन Which one? ऑल्सो ट्राई इट हियर. बता रहा हूँ, ये वाला, ये वेलोसिटी के साथ जो प्लॉट्स है, these are the plots and also the mother equation is given to you. ठीक है? अब तुम बताओ, यू गाइड मी, आई विल राइट इट डाउन. मैं प्लॉट ड्रॉ करूंगा. तो पहला वाला, इसमें y x का इक्वेशन क्या होना चाहिए, Okay. So we take V is equal to Y. राइट? एंड And we can take uh, K as constant इन भी and कांस्टेंट है, k भी N कांस्टेंट है, constant. तो z इज Hmm. x, राइट? Yes. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा y एंड x के टर्म पे? Y is equal to, तो y one इज इक्वल टू second. mx बन जाएगा, राइट? Y equal, yes, तो ये प्लॉट फिर कैसे दिखेगा? straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, but Origin. it will not touch the origin क्योंकि एटॉमिक नंबर जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगा.
अब दूसरा Okay. वाला बताओ, ये हो गया दूसरा वाला. हाउ टू रिप्लेस देम विथ एक्स एंड वाई. Okay, so we will take z y is equal v is equal to y and kz is equal to x. So व्हाट? x is equal y is equal to x. नो नो, एक्स किसको पकड़ रहे हो? Uh, one sec. Constant is kz. कांस्टेंट के इज इट, बट एक्स कौन है? Uh, n. 1/n. Oh, okay. दिस होल थिंग इज द एक्स, राइट? Hmm. तो क्या बना इक्वेशन? यू Uh, कैन से अगेन इट इज y इज इक्वल टू mx. Isn't okay. it? M is constant. Okay. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ये भी क्या होगा? इफ आई से v वर्सेस 1/n, तो ये भी, ये सेकंड प्लॉट हो गया. थर्ड Hmm. वाला प्लॉट बताओ, y एंड x के टाइम पे क्या होगा? एटलीस्ट ये तो सही बताओ. Okay. So if we this will be uh, x y equal to m. xy is equal to k, right? Yes. xy is equal to k. So I hope now you have a better idea than before कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना होता है. Yes, sir. थोड़ा तो आइडिया बेटर हुआ. Hmm. तो फिर ये क्या हुआ? दिस इज द प्लॉट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने किया था. एंड इसका प्लॉट कैसा होगा? इट विल बी लाइक दैट ओनली. Yes. ठीक है. Yes, sir. ओके. Okay, so I think we can finish it here. So radius and velocity वाला एक्सप्रेशन ग्राफ्स हो गया. नेक्स्ट क्लास में एनर्जी का एक्सप्रेशन करना है. सो वी हैव टू डू एनर्जी वाला प्रॉब्लम्स, एनर्जी का एक्सप्रेशन लेके करेंगे. एंड आल्सो द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांजिशन एनर्जी, राइट? Okay, sir. चलो. Sir, I'm ठीक है going to चलो. school tomorrow. I thought I'd let you know. Yeah, okay. I'll tell you the what the timing of the next class.